Father, I just want to thank you, Father, for this wonderful time. I want to thank you, Lord, for bringing us our sister Chanda to be an interpreter and for her to be a blessing to all of us today, Father. I just want to place into your precious hands, Lord. You anoint her right now and you touch her. And you free her mouth and her mind to do your will. Father, I ask this in the name of Yeshua, our Lord and Savior. Amen. Friends, good evening and welcome back to the Yeshiva for this week's shiur or this week's study. और मित्रों, आपको धन्यवाद देते हैं और आपको आज की शाम मुबारक हो और धन्यवाद देते हैं कि आप सब इकट्ठा हुए हो, जहाँ पे हम जो है पवित्र शास्त्र से पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं उस वचनों को, उसके लिए धन्यवाद देते हैं. We have been studying the Gospel of Luke and we are in chapter 2 and we are going to continue from verse 41 onwards. और हम जो है वो लूका की पुस्तक से जो है वो सीख रहे थे और हम लूका का दूसरा अध्याय 41 वचन की ओर से जो है वो सीखेंगे. Now in 41, in verse 41 it says, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. So it's talking about our Lord Yeshua. और यहाँ पे जो लूका का दूसरा अध्याय 41 वचन कहता है, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसके पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे. तो यहाँ पे ये वचन यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है. Every year, 3 times a year, every Jewish person, father, wife, son, daughter, everybody was supposed to attend the 3 festivals in Jerusalem. और हर साल जो है, साल में 3 बार जो है पिता, माता और उसके बच्चे जो है, उनको जो है जो यरूशलेम में जो 3 उत्सव मनाए जाते हैं, उनको उसमें जो है वो भागीदार होना पड़ता है. The 3 feasts are Passover, which is Pesach, 2 Shavuot, which is Pentecost, and 3rd is Sukkot, which is Feast of Tabernacles. और ये 3 जो उत्सव है वो है फसर का पर्व और पेंटिकोस्ट का दिन और जो तंबू का जो उत्सव मनाया जाता है वो. So all these 3 feasts, it was compulsory for every Jew and his family to be at Jerusalem and to celebrate these feasts in that place and in that city. और ये तीनों उत्सव जो है वो यहूदी परिवार के लिए जो है वो बहुत ही जरूरी होता था कि यहूदी परिवार के लोग जो है यरूशलेम में इकट्ठा हो और इस उत्सव में जो है वो भागीदार बने. Now 41 tells us very clearly that Miriam and Joseph, the parents of Yeshua, went every year during Passover to the feast in Jerusalem. और यहाँ पे 41 वचन जो है वो हमें साफ बताता है कि मरियम और यूसुफ जो है, जो यीशु के माता पिता थे, वो हर साल जो है वो फसर के पर्व के समय यरूशलेम जाते थे. Which means they were righteous and they followed the Torah and the law that God gave Moses perfectly. और ये बताता है कि वो धर्मी थे और जो नियम परमेश्वर ने मूसा को दिया था वो उनको जो है वो पूरी तरीके से निभाते थे. Now the next verse 42 is the most interesting verse which I can talk to you about for 1 hour. और जो 42वां वचन है, ये वचन बहुत ही दिलचस्प वचन है, जहाँ पे भाई जो है हमसे इस पे 1 घंटे जो है वो बात कर सकते हैं. It says over there, and when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. और फिर 42 वचन कहता है, जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए. There is nothing mentioned in the Bible that does not have specific meaning. Why does it say Jesus was 12 years old? और यहाँ पे जो है पवित्र शास्त्र में जो है ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है या इसका जो है वो कोई भी स्पष्ट मतलब नहीं है, पर यहाँ पे लिखा गया है कि यीशु जो है वो 12 वर्ष के थे. That means when the Bible is telling us something, it's telling us to look at it closely, investigate why it's saying 12 years old. और इसका मतलब ये है कि जब पवित्र शास्त्र हमें कुछ कहता है तो हमें जो है उसकी और ध्यान से देखना है और उसकी जांच पड़ताल करनी है कि वो पवित्र शास्त्र ऐसा क्यों बता रहा है कि वो 12 वर्ष के थे. I have to give you all the history of why the Bible is saying 12 years old, so you all will understand the life of a Jewish child.
और ब्रदर जो है वो हमें जो है वो इतिहास बताएंगे कि पवित्र शास्त्र क्यों कहता है कि वो 12 वर्ष के थे, ताकि हम जो है वो एक यहूदी बच्चे का जीवन कैसा होता है वो समझ सके। Now, even in chapter 1, we studied about the thing called Pidyon Haben, or the offering or the redemption of the firstborn child. और हमने जो है वो पहले अध्याय में ये पढ़ा कि जो पहलौठा बच्चा होता है उसका छुटकारा पाना या जो भेंट चढ़ाना, उसके बारे में हमने पहले अध्याय में सीखा। So that is a very important ceremony of the Jewish boy. तो वो जो यहूदी बच्चा होता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो चीज होती है। So let's look at the history of a child when he is born. Now, when a male child is born, on the 8th day he is circumcised. और फिर हम जो है वो एक बच्चे का जो है वो इतिहास देखेंगे कि जब वो पैदा होता है तो क्या होता है, जब वो 8 वर्ष का होता है तो उसका खतना किया जाता है। The 8th day, because on the 8th day the blood is the most potent and the most thickest and the most enriched of a child. और जो 8वां दिन होता है उसमें जो लहू होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो बहुत ही अ, अच्छा होता है उस बच्चे के Strength, अंदर। strength, ताकतवर strengthened. होता है, ताकतवर होता है। So when they do the circumcision on the 8th day, it heals accordingly. तो जब वो 8वें दिन खतना करते हैं तो वो अपने हिसाब से जो है वो चंगाई पाता है। Any time before that, the wound will not heal because the child is still not reached the maximum immunity with his blood. और अगर वो 8 दिन के पहले अगर ये खतने की चीज़ की जाती है तो वो जो है वो अपनी वो ज़ख्म जो है वो चंगा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है अपनी उस क्षमता तक जो है वो नहीं पहुँच पाया है। So on the 8th day, they do the circumcision and they name the child. तो 8वें दिन जो है वो बच्चे का खतना करते हैं और फिर वो उसका नामकरण करते हैं। And then, after the days of the mother's purification of 40 days for a male child and 60 days for a girl child, they bring the child to the temple for dedication. और फिर जो है वो उस माता के जो दिन होते हैं, जो शुद्धिकरण के जो दिन होते हैं, अगर उसे लड़का हुआ है तो उसके 40 दिन होते हैं और अगर उसे लड़की हुई है तो उसके 60 दिन होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो पुत्र को जो है वो बच्चे को जो है वो मंदिर ले जाया जाता है परमेश्वर को सौंपने के लिए। And they bring the child before the priest, and the priest asks the parents, which we studied last time, if you want to redeem the child, you give a half a shekel of silver and you can take the child, or else you can dedicate that child to God. और फिर हमने जो है वो पहले अध्याय में पढ़ा कि जो बच्चा है, जो माता है वो अपने बच्चे को जो है वो याजक को सौंपती है और फिर याजक कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें जो है वो आधे सिक्के जो है वो चांदी के देने हैं, तो तुम तुम्हारा बच्चा छुड़ा सकते हो या फिर तुम जो है अपने बच्चे को परमेश्वर को सौंप सकते हो। So we read that Jesus was given in the arms of Shimon and he blessed the child and he was not redeemed. That means Jesus was dedicated to the ministry even from then. और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि पर यीशु जो है वो शिमोन के हाथों में सौंपा गया था और ये पढ़ते हैं कि इसका मतलब यीशु को जो है वो छुड़ाया नहीं गया था, वो जो है उसी समय से जो है वो परमेश्वर के लिए सौंप दिया गया था। Now, when a child is dedicated to the Lord and not given to the parents, then the child will grow up in the ways of the ministry right from small. और जब एक बच्चे को जो है वो परमेश्वर को सौंप दिया जाता है और उसके माता-पिता को नहीं दिया जाता है, तो फिर वो बच्चा जो है उसी सेविकाई में जो है वो बड़ा होता है। Although the child will remain with the parents, but the child will be kept separate to learn everything of the ways of the Lord even from that small age. और भले ही वो बच्चा जो है वो माता-पिता के साथ रहता है, पर उस बच्चे को जो है वो अलग रख दिया जाता है, ताकि वो जो है वो परमेश्वर के मार्गों को जो है वो उसी उम्र से जो है वो सीख सके। But if the child is redeemed, then the child joins the father in his profession and becomes works and becomes a normal Israeli, a normal person in society. पर अगर उस बच्चे को जो है वो छुड़ाया जाता है,
तो वो बच्चा जो है अपने पिता के साथ जो है वो बढ़ता है और जो उनका व्यवसाय है, जो उनका काम है उसको सीखता है और एक सामान्य व्यक्ति बन के संसार में रहता है। So let's look now at a child who's dedicated to God. तो हम देखेंगे उस बच्चे के लिए जो परमेश्वर को सौंपा गया है। From that dedication, the child is being brought up slowly and slowly and slowly till the time he is 6 years old. और जिस समय बच्चे को सौंपा जाता है परमेश्वर को, उस समय से जो है वो बच्चा जो है धीरे-धीरे जो है वो बड़ा होता है, जब तक वो 6 साल का हो तब तक। And when he is 6 years old, the child is being asked to study the book of Leviticus and remember the entire book by heart. और जब वो बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसे सिखाया जाता है कि वो लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़े और उसे जो है वो पुस्तक अच्छे से भली-भांति जो है वो बगैर देखे याद होनी चाहिए। So typically, any child who's dedicated to God, any Jewish child who's 6 years old, will come to the temple in front of the priest and the high priest, and he will recite the entire book of Leviticus by heart. तो इसका मतलब ये है कि जो यहूदी बच्चा जब परमेश्वर को सौंपा जाता है और वो 6 वर्ष का होता है, तो वो मंदिर में आता है याजक और महायाजक के सामने और वो लेवी व्यवस्था की किताब को जो है वो बगैर देखे जो है वो उनके सामने बोलता है। And then he gets qualified to go to the next level. और फिर जो है वो काबिल बनता है, वो शिक्षा प्राप्त करता है कि वो दूसरे स्तर पे जा सके। So therefore, now his life is monitored in a spiritual oversight by the priests and the high priests and the scribes and the Pharisees. तो इसका मतलब ये है कि उसका जीवन जो है वो याजक, महान याजक और फरीसियों के निगरानी में जो है उसका जीवन जो है वो देखा जा रहा है। Now he comes back at the age of 6, and then now he studies not only the book of Leviticus, but by the time he's 12 years old, he has to study and memorize all the first 5 books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. और फिर वो जो बच्चा है जब वो 6 वर्ष का होता है तो वो वापस आता है और उसे जो है वो सिर्फ लेवी व्यवस्था की ही पुस्तक याद नहीं रखनी है, पर उसे जो है वो मूसा की पाँचों किताब जो है वो उसे याद रखनी है। वो है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। And now, by the time he's 12 years old, he's an adolescent, he's coming into teenage, and he's coming into his own. और फिर जब तक वो 12 साल का हो जाता है, तो वो जो है वो इतना अ, समझदार व्यक्ति हो जाता है कि वो जो है वो अपने आप में जो है उसे समझ आए उस उम्र तक वो पहुँच जाता है। So now he's able to stand in front of the scribes and the priests and the Pharisees, and they would ask him questions about Moses, about the Torah, about the commandments, about the laws, and they would cross question each other and learn, and he would learn from them, and they would see his level of understanding. और फिर वो जो है वो महायाजक और याजक और फ़ारिसीज़ और जो वचन सिखाते हैं उनके आगे जाके खड़ा होता है और फिर उससे जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं तोरा के बारे में, मूसा के बारे में, आज्ञाओं के बारे में, नियम के बारे में और वो जो है वो उनसे शिक्षा प्राप्त करता है और वो उसकी समझ को देखते हैं कि उसमें जो है वो वचनों की कितनी समझ है और वो अगले स्तर तक जा सकता है। Now, when we read verse 42 again, read verse 42 again. और फिर हम 42 वचन फिर से पढ़ते हैं। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। So now what was Jesus doing at 12 years old in the temple? Read 43 and 44 also. और फिर हम देखते हैं 43 और 44 वचन। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और यह यहाँ उसके माता-पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसके अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। They were searching for him because the 8 days of the festival in Jerusalem were over and they were returning back to the Galilee in Nazareth.
और फिर उसके माता-पिता जो है वो यीशु को ढूँढ रहे थे, क्योंकि जो 8 दिन का उत्सव होता है वो खत्म हो चुका था और वो अपने घर को, गलील को जो नाज़रेत में था, वो वहाँ पे लौट रहे थे। Jesus was in a temple, getting analyzed, being asked questions, and being evaluated by the priest and the high priest. And he was answering them, and he was showing a tremendous amount of wisdom, understanding, and knowledge of God. और यीशु जो है वो उस मंदिर में थे और वहाँ पे जो है उनकी परख हो रही थी, उनकी जाँच हो रही थी, याजक और महान याजक के सामने, और उन्हें जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे थे और वो जो है वो अद्भुत रीति से और एक अद्भुत जो बुद्धि था उनके अंदर, उसके द्वारा जो है वो उत्तर दे रहे थे उनको। And make no mistake of this, when I'm saying that Jesus studied the first 5 books of Moses so perfectly that he was able to remember every word of the first 5 books by heart. और इस बात को जो है वो गलती में मत लेना कि जब ब्रदर कहते हैं कि यीशु ने जो है वो मूसा की पहली 5 पुस्तकें जो है वो इतनी अच्छे से पढ़ी थी कि उन्हें जो है वो हर एक शब्द जो है उस पुस्तक के जो है वो बगैर देखे याद थे। And all Jewish children are supposed to do the same and remember the same and have that amount of wisdom and understanding to study the scriptures and to converse to the high priest. और हर एक यहूदी बच्चे को जो है इसी रीति से ये चीज़ करनी ज़रूरी है कि उसे जो है ये पुस्तकें पढ़नी है और उसे जो है वो वचन जो है वो याद होने चाहिए और उसे जो है इस काबिल बनना है कि वो जो है अपनी बातों को जो है, अपने उत्तर को जो है वो याजक और महान याजक के सामने जो है वो रख सके। But the New Testament tells us that Jesus was something different. He was already endowed with the wisdom, understanding, knowledge, and counsel, and the wisdom of God. पर नया करार जो है हमें बताता है कि यीशु मसीह जो है वो पहले से ही जो है वो परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान और समझदारी से जो है वो परिपूर्ण था, वो भरा हुआ था। That is why, uh, now read verse 45 to 48. और फिर इसीलिए हम 45 से 48 वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है, पर जब नहीं मिला तो ढूँढते-ढूँढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूँढते थे। They came looking for him and they found him in a temple. For 4 days, he was in the temple. Whether he was eating, fasting, drinking, we don't know, but Jesus was engaged with them. You know, sometimes this process takes even months with a Jewish child. और उसके माता-पिता जो है वो उसे ढूँढ रहे थे और फिर उन्होंने जो है उसे मंदिर में पाया और 4 दिन तक जो है वो यीशु जो है उस मंदिर में था। अब हम नहीं जानते कि वो खा रहा था, वो उपवास कर रहा था या वो क्या कर रहे थे, हम नहीं जानते, पर वो जो है वो जुड़े हुए थे लगातार उन लोगों के साथ जो उनको उत्तर पूछ रहे थे और वो उनको प्रश्न देने के लिए, और हमें जो है हर एक को जो है ऐसा करना चाहिए। और 4 दिन तक जो है वो मंदिर में थे। कभी-कभी इस क्रिया को जो है वो महीने लग जाते हैं। It's in the heart of a Jewish soul to discourse, debate, and have understanding and exchange of knowledge to study the scriptures. और ये जो है वो एक यहूदी के जो है वो हृदय में होता है, उसकी आत्मा में होता है कि वो जो है वो वचन का जो है वो घोषणा करे और वो जो है उससे सामने वाले से जो है वो बात करे और जो ज्ञान है वो एक-दूसरे से जो है वो ज्ञान की अदली-बदली करे। The best way of learning scriptures is to learn from each other. जो सबसे अच्छा तरीका जो है वचन पढ़ने का वो ये है कि हम एक-दूसरे से जो है वो वचन सीखें। This is the formula for Bible study in the Bible, my friends. और यही एक फ़ॉर्मूला है पवित्र शास्त्र सीखने का या पवित्र शास्त्र पढ़ने का। You hear the voice of God and you debate and you talk and you reason and you speak to each other and you learn from each other.
और जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, हम जो है उसके ऊपर बातें करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और हम जो है वो एक-दूसरे को जो है वो सिखाते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं। When you do this alone, you will most probably go wrong. और जब आप ये चीज़ अकेले करोगे, तो ज़्यादातर आप जो है वो गलत जाओगे। You know, Jesus knew the scriptures by heart. He knew every single word. Even when Satan tempted him, he could repeat the scriptures by heart. और यीशु जो है वो हर एक वचन को, हर एक शब्दों को जो है वो बगैर देखे जो है वो जानता था। उसे हर एक वचन जो है वो याद थे और वो जो है वो बगैर देखे कह सकता था उसे। और जब हम देखते हैं कि शैतान जब उनकी परीक्षा लेते हैं, उन्हें तभी भी वचन जो है वो इतने याद थे कि वो उसके आगे जो है वो वचन रखता है। The mind of Jesus was filled with the fullness of the scriptures. It was a part of him. और यीशु का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से जो है वो वचनों से जो है वो भरा हुआ था और वचन जो है उसका एक हिस्सा थे। I'm talking to you about now in a different context. I'm talking to you about the physical Jesus, okay? So please don't get me wrong in what I'm saying. तो आप हमें गलत मत लीजिए। अब हम आपसे जो बात कर रहे हैं, हम आपको एक शारीरिक रूप में यीशु कैसा था उसके बारे में आपसे बातें कर रहे हैं। Because that's how we need to be. That's why I'm talking in that context. और हमें भी जो है वो इस रीति से होना चाहिए, इसलिए जो है हम उसके बारे में जो है आपसे बात कर रहे हैं। Okay, so what happens now when this child of 12 years old passes this exam and test? और फिर क्या होता है जब एक बच्चा जब 12 साल का होता है और इस परीक्षा से जो है वो आगे बढ़ जाता है, Then the scribes and the Pharisees pass him and they say, "Well done, son. Now go back and come back to us at the age of 30, because at the age of 30, you will finally, when you pass that test at the age of 30, you will enter into ministry." और फिर जो है वो फ़ारिसीज़ लोग और जो सदूसी लोग होते हैं वो उसे कहते हैं कि शाबाश मेरे बच्चे, तुमने अच्छा किया और अब तुम जा सकते हो और जब तुम 30 वर्ष के होगे तब तुम हमारे पास दोबारा आना और फिर जब तुम 30 वर्ष की उस परीक्षा को जो है वो पास कर लोगे, तब आप जो है वो सेविकाई में दाखिल हो सकते हो। And then he would go back, and for 16 years, this Jewish boy would study the scriptures again. He would study the prophets, he would study the Psalms, he would study these different rabbis and his different teachers, and he would learn everything possible to be built up into the ministry for God. और फिर 16 वो बच्चा जो है वो चला जाता है और फिर 16 वर्ष तक जो है वो बच्चा जो है उन वचनों को पढ़ता है और वो जो है वो नबी के बारे में, भजन संहिता के बारे में, अलग-अलग शिक्षक के बारे में और अलग-अलग रबाई के बारे में सबकी जो है वो शिक्षा लेता है। वो मुमकिन करता है, हर एक कोशिश करता है कि वो पूरा ज्ञान जो है वो अपने अंदर प्राप्त कर सके ताकि वो पूरी तरीके से सेविकाई के लिए तैयार हो। And when he's 30 years old, he would come back to the temple and present himself in front of those scribes and Pharisees and the high priest again. और फिर जब वो 30 वर्ष का होता है, तो फिर वो उस मंदिर में दोबारा आता है और फिर वो अपने आप को जो है उस याजक, महान याजक और फ़ारसी लोगों के सामने जो है वो पेश करता है। And that process and exam would take sometimes even 1 year. और फिर वो क्रिया और वो परीक्षा जो है कभी-कभार जो है वो 1 साल लेती है। And then they would sit and they would discuss and they would examine and they would talk about the scriptures and about the law and the Torah and the and learn and discuss so many things of the scriptures until they were uh, they were ready to call him a rabbi. और फिर वो जो है वो बैठते हैं और वो जो है वो एक-दूसरे के साथ चर्चा करते हैं वचनों के बारे में, तोरा के बारे में और जो नियम है उसके बारे में, हर एक बातों के ऊपर जो है वो इतनी चर्चा करते हैं एक-दूसरे से और वो जब तक करते हैं तब तक वो ये पाते हैं कि वो इतना परिपूर्ण हो गया है कि वो उसे आगे जाके रबाई कह सके। And then they would take him, they would do a spiritual bath called a mikvah or a baptism, and then they would, with 3 witnesses, they would anoint him and call him a rabbi. और फिर वो जो है वो उसे अपने साथ लेते हैं
और फिर वो जो है एक आत्मिक जो स्नान होता है वो करते हैं, जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं, 3 गवाहों के सामने, और फिर वो जो है उसे रबाई बनाते हैं। And then after he becomes a rabbi, he's allowed to go and search for his students and form his own rabbinic school. और फिर जब वो रबाई बन जाता है तो उसे जो है अ, वो जो है वो बाहर जाता है और फिर वो अपने जो है वो शिक्षकों को ढूँढता है, ताकि वो जो है एक रबाई स्कूल बना सके। So you had different schools of rabbis. For example, during the time of Jesus, there was the school of Rabbi Hillel, then there was a school of of Shammai, then there was a school of another rabbi and Rabbi Akiva and Rabbi. So many rabbis had their different schools. और यीशु के समय में जो है वो अलग-अलग जो कलीसियाएँ होती थी, रबाई की स्कूल होती थी, वो थी, जैसे हम देखेंगे अगर रबाई हिलेल, रबाई Shammai. शमाय, और अलग-अलग जो रबाई की स्कूलें थी वो यीशु के समय में थी। So all the time, the temple in Jerusalem was filled with each of these rabbis and their disciples and their students. और हर समय जो है यरूशलेम में वो मंदिर जो है वो उन उन रबाइयों से, उनके चेलों से और उनके शिक्षकों से जो है वो भरा रहता था। So I want you to understand whenever Jesus was in the temple with his disciples, it was really his interaction with the other schools of Torah and schools of other rabbis with their disciples and their teachers who he was interacting with. और फिर जब यीशु मसीह जब भी मंदिर में होते थे अपने चेलों के साथ, तो उस समय जो है वो अलग-अलग जो स्कूल होती थी, जैसे तोरा की और अलग-अलग रबाई की जो स्कूलें होती थी, उनके चेले होते थे, उनके शिक्षक होते थे, तो यीशु जो है उनके साथ हमेशा जो है वो बातचीत करता रहता था। Now, what happened at the age of 30 when Jesus was at the age of 30? और फिर क्या हुआ 30 वर्ष की उम्र में, जब यीशु मसीह 30 साल के थे? Okay, read verses 47 till 52. हम 47 से 42 वचन पढ़ेंगे। और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उससे नहीं समझी। तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपनी मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। It's so wonderful to understand the New Testament and the life of our Lord in the right understanding. और ये कितना अद्भुत है कि हम जो है इस नए करार को जो है, वचनों को जो है, और हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को जो है वो सही रीति से जो है वो समझे। We're been given this New Testament in Greek. We're reading it from the Hindi or the Marathi or the English, but we do not know the Hebrew context and Hebrew mind of it. और ये जो वचन है ये यूनानी में लिखा गया है। हम इसे जो है अंग्रेजी, हिंदी या मराठी में पढ़ते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हिब्रानी में जो है इसका क्या अर्थ है या क्या मतलब है। Now jump to chapter 3, verse 23. हम लूका का 3 अध्याय और 23 वचन पढ़ेंगे। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का। He was 30 years of age, as I told you, where he started his ministry, friends. And when did he go and do his mikvah? When he was baptized with Yochanan Hamatbil, John the Baptist. And the three witnesses were who? The Father in heaven, the Holy Spirit that descended like a dove, and John the Baptist were the three witnesses. और हमने जैसे आपको पहले कहा कि यीशु जो है वो 30 वर्ष का हुआ, और फिर वो जो है वो सेविकाई में गया, और उसने अपनी सेविकाई जो है वो शुरू की बपतिस्मा लेने के बाद, और 3 गवाहों के सामने जो है उन्होंने बपतिस्मा लिया। और 3 गवाह कौन थे? पिता, पवित्र आत्मा जो कबूतर की न्याय उनके ऊपर उतरी थी, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला।
And so then Jesus does his ministry. And then from there, he goes into the desert to be tempted of the devil and comes back. And his ministry for 3.5 years starts from there. और फिर यहाँ से जो है यीशु अपनी सेविकाई को जो है वो शुरू करता है। वो उस रेगिस्तान में जाता है जहाँ पे शैतान से जो है उसकी परीक्षा होती है, और फिर वो जो है वो दोबारा वापस आता है और यहाँ से जो है वो 3.5 साल के लिए अपनी सेविकाई शुरू करता है। See, Jesus in his essence is divine. But when I say Jesus, the earthly man, he labored as a man on this earth to overcome that which you and me cannot overcome. और यीशु मसीह का अगर हम जो है वो सुगंध देखेंगे तो वो जो है वो दैव्य है, पर अगर हम उन्हें देखें तो वो अगर हम उन्हें एक सांसारिक मनुष्य के रूप में देखें तो वो इस संसार में आए और उन्होंने वो चीज की जो आप और हम नहीं कर सकते हैं। When the Bible says Jesus fulfilled the commandments, it means to say that Jesus took all the commandments that were given to Moses and he utilized it and he perfected the commandments in the right way. और जब वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जो है वो नियम को जो है वो पूरा किया, तो वो ये बताता है कि उन्होंने जो है जो मूसा को आज्ञाएं दी गई थी, उन्होंने उस आज्ञा को जो है वो लिया और उन्होंने उसे सिद्ध किया और उसे परिपूर्ण करके जो है वो उन्होंने पूरा किया। उसने वो वापरा, he used, Sorry. utilized the commandments to perfection. उन्होंने जो है उस आज्ञाओं को जो है वो इस्तेमाल किया ताकि वो जो है उसे सिद्ध कर सके। Correct. Likewise, you and me also now are supposed to utilize the commandments to bring us to a righteousness for God. और उसी प्रकार आपको और हमको जो है उस आज्ञाओं का जो है वो इस्तेमाल करना है ताकि हम जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता को ठहरा सके। Because Jesus has done it, we can also accomplish it now. क्योंकि यीशु ने जो है वो कर लिया है, तो आप और हम जो है उसे अभी पूरा कर सकते हैं। So the message and the gospel that Jesus was bringing in was taking those same commandments but lifting it spiritually to a very high level which the common people were not able to understand. पर जो संदेश और सुसमाचार यीशु जो है वो लेकर आ रहे थे, वो जो है वो उसी आज्ञाओं को जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे और he was using the same commandment, And he was lifting it to a very high spiritual level. सॉरी, और वो उन्हें जो है वो एक अलग ही आत्मिक स्तर के ऊपर जो है वो ऊंचाई पे लेके जा रहे थे। That is why in verse 47 it says, and all who heard him were astonished at his understanding and what he was answering them, because they could not believe the wisdom and the knowledge that was coming out from this young boy. और फिर इसीलिए 47वें वचन में कहते हैं कि जो कोई उसे सुन रहे थे वे सब जो है उसकी समझ को देखकर और उसके उत्तरों से जो है वो चकित थे, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी समझ जो है वो उनके अंदर जो है वो कहाँ से आई थी। So this entire process which I told you right now is a process which is called in Hebrew as shmika. तो जो ये पूरी क्रिया जो है अभी हमने आपको बताई, तो ये पूरी क्रिया को जो है वो हिब्रानियों में शिमिका कहा जाता है। And shmika simply means anointing, support or ordination. और शिमिका का साधारण मतलब ये है कि अभिषेक करना, साथ देना। So when the Jewish people were expecting the Messiah to come, they were expecting the Messiah to come and to be of a very high spiritual level who can bring a radical change in their society. और जब यहूदी लोग जो है अपनी मसाया का जो है वो जब इंतजार कर रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि जब वो मसाया आएगा तो वो जो है एक ऊंचे स्तर का जो है वो आत्मिक स्तर लेकर आएगा, जो एकदम से जो है इस पूरे संसार को जो है वो बदल देगा। He would change their life, he would change their status, he would change their kingdom, he will throw out the Romans, he will do so many wonderful things among them. और वो जो है उनकी जीवनों को बदलेगा, वो उनके राज्य को बदलेगा और वो जो है वो रोमियो लोगों को जो है यहाँ से निकाल फेंकेगा और वो they will throw the Romans out and They will throw the Romans out and they would reinstall the Jewish nation as the foremost nation of this world.
और वो जो है वो यहूदी राष्ट्र का जो है वो वापस से जो है वो पूर्ण स्थापना करेगा। But when Jesus comes and is doing all this, what is required of the Messiah, they got confused. पर जब यीशु आए और वो ये सारी चीजें कर रहे थे जो एक मसाया को करना चाहिए, तो वो जो है वो कंफ्यूज हो गए, वो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या समझे। So they're saying, but you're a man. You're the son of Joseph and Miriam. We know your brothers. We know your sisters. How can you do all these things? You're not supposed to do. You are not supposed to do these things. Only the Messiah is supposed to do these things. और फिर वो उसे कहने लगे कि तू जो है वो मनुष्य है, तू मरियम और यूसुफ का जो है वो पुत्र है, हम तेरे भाई को जानते हैं, हम तेरी बहन को जानते हैं, तू जो ये चीजें कर रहा है, तुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीज तो सिर्फ मसाया कर सकता है। So the people, the very low and the humble and the poor people, all followed him because now they realize that he is the Messiah. तो जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो नीचे स्तर के लोग थे, जो नम्र लोग थे, वो सारे लोग जो है उसके पीछे हो लिए क्योंकि वो जानते थे कि वो मसाया है। But all the learned people, the rabbis, the schools, the teacher who they were learned with all the wisdom, could not accept him. They were jealous of him and they could not believe that a human being could do so many things. और जो भी शिक्षित हुए हुए लोग थे, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, जो रबाई थे, जो स्कूल के बड़े-बड़े शिक्षक लोग थे, वो सब जो है जिनको जो है वो बुद्धि और ज्ञान था, वो ये चीज़ को स्वीकार नहीं कर सके कि जो मनुष्य है, वो मनुष्य जो है इन सी बातों को जो है वो कैसे कर सकता है। And moreover, they also believed that only the Mashiach, the Messiah, could get this highest level of Shmika. तो खाली उन लोग ये विश्वास करते थे कि जो मसाया है, वो जो है वो उस ऊँचे स्तर का जो है वो शिमिका लेकर चलता है। But when they see Jesus, a man in front of them, doing all this, their full life turned upside down and they could not understand what is happening. और पर जब वो मनुष्य यीशु को अपने सामने देखते हैं एक मनुष्य के रूप में, तो वो जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है और उनका जीवन जो है वो पूरा ऊपर-नीचे हो जाता है। Even his mother and father could not understand him because he told them, don't you know I was doing my father's business? But और even his उस mother and father could not understand them. और उसके माता-पिता खुद जो है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो उनसे कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं जो है अपने पिता का कार्य कर रहा था, पर उसके माता-पिता खुद इन बातों को नहीं समझ पाते। So anyway, he comes back down after he's 12 years old and goes back to Nazareth and went through this entire process till the age he is 30 years old, friends. So we've understood this entire life of Jesus on this earth. और फिर वो जो है वो नीचे आते हैं और फिर वो अपने माता-पिता के साथ जो है वो यरूशलेम को वापस जाते हैं और वो जो है इस पूरी क्रिया को जो है वो करते हैं करते हैं जब तक वो 30 वर्ष की आयु तक नहीं हो जाते हैं। तो हमने जो है ये पूरा क्रिया को पढ़ा कि यीशु जो है वो मनुष्य इस संसार में जो है वो मनुष्य के रूप में कैसे आए थे, उस पूरी क्रिया को हमने पढ़ा। Now read verse 52. हम 42 वचन पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और डील-डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। It says Jesus increased in wisdom and in stature. और फिर ये वचन कहता है कि यीशु जो है अपनी बुद्धि में और अपनी डील-डोल में जो है वो बढ़ता गया। What do you mean he increased? But we already know Jesus is divine, he already had it. Why should he increase in this? और हम सब जानते हैं कि यीशु जो है वो दैव्य है, उनके अंदर जो है ये सारी बातें पहले से ही है, तो उन्हें जो है वो बढ़ने की इन बातों को उनमें बढ़ने की क्या ज़रूरत है? No one has an answer for this, my friends. और किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं है। If we do not believe that about something, that means we tend to throw it out. We don't need to answer that. और अगर हम किसी बात को जो है वो समझते नहीं है, तो हम उस बात को जो है वो बाहर फेंक देते हैं ये क्योंकि हम उसे समझना नहीं चाहते। And then it says he grew in favor and merit with God and with man.
और फिर आगे ये कहता है कि वो जो है वो अनुग्रह में बढ़ता गया परमेश्वर में और मनुष्य में। Why with God? परमेश्वर के साथ क्यों? Why? Isn't he also divine? क्या वो दैवीय नहीं है? Such difficult questions we have to ask because it's talking about the physical Jesus. It's not talking about the spiritual Yeshua. और बहुत ही मुश्किल भरे प्रश्न हो जाते हैं कभी-कभी हमें पूछने के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो शारीरिक यीशु की बात कर रहा है, ना कि आत्मिक यीशु की। The problem is, whenever we are reading the scriptures, we are not able to differentiate between the spiritual Yeshua and the physical Jesus. और समस्या वहां आती है कि जब कभी हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम जो है वो फर्क नहीं कर पाते हैं शारीरिक यीशु के बीच में और आत्मिक यीशु के बीच में। Most times, it's very, very important for us to understand the physical Jesus because until we do not know and learn the physical Jesus, you and me will not know how to live our life on this earth. और ज्यादातर जो है हमें जो है वो शारीरिक यीशु के बारे में जो है वो सीखना या जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम शारीरिक यीशु के बारे में नहीं सीखेंगे तो आप और हम जो है इस संसार में सही रीति से नहीं रह पाएंगे। The physical Jesus kept all the commandments. शारीरिक यीशु ने जो है वो सारी आज्ञाओं को रखा। The physical Jesus was baptized in the water. जो शारीरिक यीशु था उसका पानी में बपतिस्मा हुआ। The physical Jesus kept each and every feast and every Shabbat of the law given to Moses. और जो शारीरिक यीशु था उन्होंने जो है वो हर एक उत्सव को और हर एक शबात को जो है रखा जो मूसा को दिया गया था। The physical Jesus grew in wisdom and stature before God. जो शारीरिक यीशु था वो बुद्धि और डील डोल में जो है वो परमेश्वर के आगे बढ़ता गया। And he earned merit in the sight of God for a reason. And I'll tell you why it talks about this. और उन्होंने जो है वो परमेश्वर के सामने जो है वो उस अनुग्रह को पाया, और हम आपको बताएंगे कि वो वचन जो है वो ऐसा क्यों कह रहा है। He earned his place with God. उन्होंने जो है अपनी जगह को परमेश्वर के साथ, जो उनकी जगह थी उसको उन्होंने कमाया। Now you must be wondering, why am I saying this? और आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। Because he earned it not for himself, he earned it for you and me. और उन्होंने इसे अपने लिए नहीं कमाया, पर उन्होंने इसे आपको, आपके लिए और मेरे लिए कमाया। So whatever he done, that earning is put on our name, deposited into our bank. तो उन्होंने जो कुछ भी किया है उस कमाई को जो है वो हमारे नाम पे रख दिया है, वो हमारे खातों में जो है वो डाल दिया है। And God is going to look at our bank and say, okay, this is what you have earned. और फिर परमेश्वर हमारे बैंकों की ओर देखेगा और कहेगा कि ठीक है, ये है, ये तुमने कमाया है। Make no mistake of it. God made sure that his son Yeshua earned his place in heaven for you and me. और इसमें जो है आप कोई भी गलती मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो है ये निश्चय किया कि यीशु जो है उस स्थान को जो है आपके लिए और मेरे लिए जो है वो स्वर्ग में कमाए। When we understand what Jesus has actually done, it is absolutely amazing and astounding to know the depth, the spiritual depth of what Jesus has actually accomplished for humanity. और जब हम इस बात को देखते हैं कि जब जब हम इस बात को देखते हैं कि जो यीशु ने किया है, तो ये बात जो है वो बहुत ही अचंभित हो करती है और बहुत ही अद्भुत बात है कि ये हमें सिखाती है कि यीशु ने क्या चीज़ की आपके और मेरे लिए। Praise God. I hope you'll have learned. I hope you'll have blessed. And we will end chapter 2 today. And we will come back next week and we will start chapter 3, my friends. और परमेश्वर की स्तुति हो, हम विश्वास करते हैं कि आज आपने जो है वो सीखा है और आपने समझा है, और यहाँ पे हम जो है वो लूका का दूसरा अध्याय आज समाप्त करते हैं और अगली बार हम लूका का तीसरा अध्याय से शुरू करेंगे।
So till next week, shalom and God bless and good night. और अगले हफ्ते तक के लिए आप सबको शलोम, परमेश्वर आपको आशीषित करे और शुभ रात्रि।